Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif lectures. हम thorax के anatomy डिस्कस कर रहे हैं और bones in the thoracic wall हमारा टॉपिक है. Ribs हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं और आज जो बोन हम डिस्कस करेंगे thoracic cage में that is the sternum. ठीक है. अच्छा, sternum is present in the midline, anterior part पे होती है. आपको इसका बेसिक आइडिया है कि this for example is the clavicle और दोनों clavicle के बीच में यहाँ से स्टार्ट हो जाती है sternum. It goes down 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 और साइड पर इसकी लगी होती हैं रिब्स. सो बेसिकली स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन एंड इट फॉर्म्स द एंटीरियर मीडियन पार्ट ऑफ द थोरेसिक केज. सो जो पूरा थोरेसिक केज है उसमें ये एंटीरियरली प्रेजेंट है एंड इट इज प्रेजेंट इन द मीडियन प्लेन, बीच में मौजूद है. जैसे रिब्स लेटरल साइड पे मौजूद हैं ऐसे ये जो स्टर्नम है इट इज प्रेजेंट इन द मीडियन प्लेन. ठीक है. अच्छा, शेप वाइज अगर डिस्कस करें कि स्टर्नम की शेप किस तरह होती है, सो इट resembles like a short sword. तलवार कोई छोटी होती है ना, जैसे फाइटिंग के लिए तलवार यूज होती है. सो इफ यू लुक एट दिस, यू नो इट्स लाइक अ sword shaped structure जिसका जो अपर पार्ट है which kind of corresponds to the handle of the sword and this upper part is known as manubrium. और ये बात हमने कई दफा डिस्कस की है. सो इफ दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट इज sternum. सो sternum के बेसिकली तीन पार्ट्स हैं. जो फर्स्ट पार्ट है इट इज दिस upper part. This upper part is known as manubrium. So that is part number one. Then we have this long part. This long part is known as body of the sternum. This is part number two. And then this third part, which is very small and towards the end, the lower end of the sternum, this small part is known as Zephoid process. So sternum is basically composed of these three parts. Manubrium, जो सबसे ऊपर है, उसके बाद long part है, which is the body, और उसके बाद ये short part है, which is called the Zephoid process. ठीक है. So there is a manubrium, first part, there is a body which is part number two, and then there is a Zephoid process या इसको हम Zephy sternum भी कहते हैं. So that's part number three. Total जो length है sternum की from top to the bottom including the top surface of the manubrium to the bottom surface of the Zephoid process, ये usually around 17 centimeter होती है. It is a little longer in males and shorter in females. ठीक है. अब ये जो तीनों पार्ट्स हैं स्टर्नम के, पहला पार्ट विच इज कॉल्ड मेन्यूब्रियम, दूसरा पार्ट विच इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ स्टर्नम और तीसरा पार्ट विच इज कॉल्ड द ज़ीफॉइड प्रोसेस. इन तीनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे. इनकी शेप्स कैसी होती हैं, इनकी सर्फेसिस क्या होती हैं और इन पर क्या क्या चीज़ें अटैच होती हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम विच इज द मेन्यूब्रियम स्टर्नाई या सिंपली इसको मेन्यूब्रियम भी कहते हैं. ओके. इट इज अ क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर इन शेप. क्वाड्रिलेटर समहाउ फोर साइड्स हैं, देखें, quadrilateral structure. So it's a quadrilateral. It is the strongest and thickest part of sternum. पूरी sternum में सबसे strong, thickest, shortest part होता है. सबसे छोटा तो खैर Zephoid process है, लेकिन it's the strongest and the thickest part of the whole sternum. Okay, it has two surfaces. एक सामने वाली surface है which is called the anterior surface और posterior surface obviously back side पे जो पीछे वाली surface होगी. और इसके चार borders आपको पता होने चाहिए. There is a superior border, there is an inferior border and then these are the lateral borders. ठीक है. So there are four borders, superior, inferior and two lateral border. There is a front surface and there is a back surface. ठीक है. Anterior जो surface है it is a little convex, बाहर की तरफ निकली होती है, and the posterior surface is a little concave. The superior border, ये वाला जो superior border है it is thick, rounded and concave. It is marked by the supraesternal notch. ये पहले भी पढ़ा था, याद है पिछली वीडियो में. supraesternal notch, इस एंड पे यहाँ पे clavicle होगी और इस एंड पे यहाँ पे clavicle होगी. दोनों क्लैविकल्स के बीच में देयर इज अ सुप्रास्टर्नल नॉच या इसको हम जुगुलर नॉच भी कहते हैं. सो और यहाँ पे आप ट्रैकिया को पैल्पेट कर सकते हैं. ओके. द क्लैविकल नॉच आर्टिकुलेट्स विद द मीडियल एंड ऑफ क्लैविकल. ये बात हमने कर ली कि यहाँ जो क्लैविकुलर नॉच है इट आर्टिकुलेट्स विद द क्लैविकल. अच्छा, जो इंफीरियर बॉर्डर है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क. कई दफा ये बात मैंने आपको बताई है. इंफीरियर बॉर्डर बॉडी के साथ ज्वाइंट बनाता है हेयर एंड दिस इज कॉल्ड द स्टर्नल एंगल ऑफ लुए. स्टर्नल एंगल ऑफ लुए इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने आपको बताया था कि स्टर्नल एंगल ऑफ लुई मार्क्स द जंक्शन ऑफ द सेकंड कोस्टल कार्टिलेज. इट मार्क्स द जंक्शन ऑफ द कार्डियक प्लेक्सिस. It's the base
ऑफ द हार्ट की अपर लिमिट है. आर्च ऑफ एओर्टा यहाँ स्टार्ट होती है, असेंडिंग एओर्टा यहाँ एंड होती है, आर्च ऑफ एओर्टा एंड देन डिसेंडिंग एओर्टा भी यहाँ स्टार्ट होती है. ट्रैकिया डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में. सो अ लॉट ऑफ एनाटॉमिकल जो लैंडमार्क्स हैं वो इस एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुई से कैलकुलेट होते हैं. सो इफ यू आर एबल टू लोकेट वेयर इज द एंगल ऑफ लुई, यू आर एबल टू टेल कि यहाँ पर ट्रैकिया बाइफरकेट हो रही होगी, यहाँ पे ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा एंड ऑल दैट. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क. ठीक है. अच्छा, जो लेटरल बॉर्डर है मेनिब्रियम के, इट फॉर्म्स द प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज एंड इट्स अ डेमीफेसिट फॉर द साइनोवियल आर्टिकुलेशन इन द अपर पार्ट ऑफ द सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज भी यहाँ पे अटैच होता है. सो ये जो लेटरल बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज की ये रही नॉच, दिस इज द नॉच फॉर यहाँ फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज अटैच होगा एंड दिस इज देन द नॉच फॉर द सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज. सो सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज इस तरह से अटैच होता है कि उसका जो अपर पार्ट है वो मेनिब्रियम पे अटैच होता है और सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज का जो लोअर पार्ट है वो बॉडी पे अटैच होता है. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. सो अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं, इफ आई समराइज the whole thing for you, what we have discussed so far is different parts of manubrium. There are four surfaces. Superior surface, let us look at another diagram and try to understand the same concept. There is a superior surface, your border, there is an inferior border and there are two lateral borders. एक सामने की surface है which is anterior, एक back side की surface है which is posterior. ठीक है. ऊपर जो superior border है, this is also called jugular notch. और laterally इस पर क्या क्या अटैच होता है? clavicle अटैच होती है, first costal cartilage अटैच होता है और second costal cartilage अटैच होता है. और inferior border जो है it joins with the body at the external angle of Louis. So ये सारी बातें आपको मेनिब्रियम के बारे में पता होनी चाहिए. Then the attachments. अच्छा, anterior जो surface है उसकी जो साइड से अटैचमेंट है pectoralis major की, and on the anterior surface there is also external head of the external cleidomastoid. So if you look at this diagram, this is to show the anterior attachment. ये pectoralis major है, इस साइड से भी निकल रहा है, इस साइड से भी निकल रहा है, and these are the attachments towards the midline. External cleidomastoid का external head. External head इसीलिए क्योंकि sternum से निकल रहा है, external cleidomastoid मसल का नाम है. So एंटीरियर सरफेस ऑफ मेनिब्रियम पर ये दो इंपॉर्टेंट अटैचमेंट्स हैं और पोस्टीरियर सरफेस पर अपर पार्ट से स्टर्नोहायोइड मसल है एंड देयर इज स्टर्नोथायरॉइड मसल. ठीक है. एंड देन देयर आर आल्सो सम लिगामेंट्स जो आपको पता होने चाहिए. जो सुप्रास्टर्नल नॉच है उस पर एक लिगामेंट पूरा ट्रैवल करता है, अटैच होता है, दैट इज द इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट. तो स्टोरी ऐसी होती है कि एक साइड से यहाँ से क्लैविकल आ रही है, दूसरे साइड से यहाँ से क्लैविकल आ रही है, ये बीच में मेनिब्रियम पड़ा हुआ है ना. सो दिस इज द मेनिब्रियम बोन और ये वाली जो जगह थी इसको हमने नाम दिया था ये नॉच थी, सुप्रास्टर्नल नॉच या जुगुलर नॉच. तो एक क्लैविकल के मीडियल एंड से दूसरे क्लैविकल के मीडियल एंड तक ये लिगामेंट ट्रैवल करता है और ये सुप्रा एक्सटर्नल नॉच में पड़ा हुआ होता है, इस पर भी अटैच होता है. तो ये वाला जो लिगामेंट है जो क्लैविकल टू क्लैविकल ज्वाइंट करता है इसको हम नाम देते हैं इंटर क्लैविकुलर लिगामेंट. इंटर यानी दरमियान में, किसके दरमियान? दो क्लैविकल्स के दरमियान लिगामेंट. ठीक है. तो ये सुप्रा एक्सटर्नल नॉच होता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए. नाउ मार्जिन्स ऑफ ईच क्लैविकुलर नॉच गिव अटैचमेंट टू द कैप्सूल. ज़ाहिर है जहां ये स्टर्नम है अगर और ये स्टर्नम का क्लैविकल नॉच है तो यहाँ पे क्लैविकल अटैच होगी, तो मार्जिन ऑफ द मेनिब्रियम यहाँ पर there will be a capsule attachment. So that is something that is also understandable. Okay. तो ये important attachments हैं जो sternum के हवाले से आपको पता होनी चाहिए. Manubrium के जो part है उसके हवाले से manubrium sterni. So that bit, the upper bit is the manubrium sterni. Okay. Now एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे मेनिब्रियम स्टर्नाई का जो पोस्टीरियर सरफेस है, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ, पीछे से देख रहे हैं आप मेनिब्रियम स्टर्नाई को, तो साइड्स पे ये मसल है स्टर्नोथायरॉइड और ऊपर ये मसल है स्टर्नोहायोइड. बट यू ऑल्सो सी इसके जो लोअर पार्ट है या मिडल से लोअर पार्ट देयर इज एन आर्च ऑफ एओर्टा. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऑफ मेनिब्रियम स्टर्नाई पोस्टीरियर सरफेस. मेनिब्रियम स्टर्नाई का जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ आर्च ऑफ एओर्टा मौजूद है. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऑफ मेनिब्रियम स्टर्नाई और ये भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. अब आइए बात करते हैं बॉडी ऑफ द स्टर्नम. अच्छा, बॉडी ऑफ द स्टर्नम जो है वो मेनिब्रियम के नीचे होती है. द बॉडी इज लॉन्गर, नैरोअर एंड ऑब्वियसली थिनर एज कंपेयर टू द मेनिब्रियम. ये पूरी बॉडी है. ठीक है. ये वाला जो पार्ट है स्टर्नम का, दिस इज द बॉडी. अच्छा, बॉडी का भी एक एंटीरियर सरफेस है और एक पोस्टीरियर सरफेस है. सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. देयर इज एन एंटीरियर सरफेस, देयर इज अ पोस्टीरियर सरफेस, देयर आर लेटरल बॉर्डर्स और
और लेटरल बॉर्डर्स पे क्या है, लेटरल बॉर्डर्स पे फैसेट्स हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ द कॉस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है। सो स्टर्नम की जो बॉडी है उसके दोनों लेटरल साइड पे, ये भी लेटरल सरफेस है, ये भी लेटरल सरफेस है, यहाँ पे क्या आके अटैच होंगी, रिब्स या कॉस्टल कार्टिलेजेस। सो जो लेटरल साइड है इट कंटेन्स फैसेट्स फॉर कॉस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है। वो सैनिवल जॉइंट यहाँ पे बनाते हैं। सो दे फर्स्ट 7 जो आपके कोस्टल कार्टिलेजेस हैं दे अटैच ऑन द स्टर्नम, ये हमने पहले भी बात कर रखी है। द अपर एंड फॉर्म्स अ जॉइंट सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट विद द मेनिब्रियम एंड फॉर्म्स द स्टर्नल एंगल ऑफ लुई। बार बार हम बात कर रहे हैं, लेट अस लुक बैक एट दिस डायग्राम। सो ये अपर बॉर्डर ऑफ स्टर्नम है और ये लोअर बॉर्डर ऑफ मेनिब्रियम है। सो यहाँ पे जो जॉइंट है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, दैट इज द स्टर्नल एंगल ऑफ लुई, ये हमने बात की है, ओके। सो अटैचमेंट्स क्या क्या हैं, एंटीरियर साइड पे बिग अटैचमेंट पेक्टोरालिस मेजर मसल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस गिव्स राइज टू स्टर्नोकोस्टालिस मसल। ऑल्सो बिटवीन द फैसेट्स फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द कॉस्टल कार्टिलेजेस लेटरल बॉर्डर से निकलता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। सो ये आपको 3 बातें याद रखनी है कि एंटीरियर साइड से क्या निकल रहा है, पोस्टीरियर साइड से क्या निकल रहा है और लेटरल साइड से कौन से मसल्स निकल रहे हैं। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट मस्कुलर अटैचमेंट। सो दिस इज काइंड ऑफ द पोस्टीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड से कौन सा मसल निकल रहा है, स्टर्नोकोस्टालिस। अगर हम एंटीरियर साइड देखते हैं तो दिस इज द एंटीरियर साइड, ये साइड से मसल कौन से निकल रहे हैं, दीज आर द पेक्टोरालिस मेजर। और बिटवीन द कोस्टल कार्टिलेजेस यहाँ से मसल निकल रहे होते हैं लेटरल साइड से, विच आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। सो ये अटैचमेंट्स हो गई जनाब बॉडी ऑफ द स्टर्नम की। सो दैट्स ऑल अबाउट द बॉडी। अब जो छोटा सा आखिर में ये पार्ट है स्टर्नम का, दिस पार्ट इज नोन एज ज़ेफॉइड प्रोसेस या ज़ीफी स्टर्नम। नाउ ज़ेफॉइड प्रोसेस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम, सबसे छोटा सा पार्ट है। इनिशियली इट इज कार्टिलेजिनस बट एडल्ट में इट बिकम्स ऑसिफाइड नियर द एपेक्स। सो इसका जो ये एपेक्स रीजन है यहाँ पे इसकी ऑसिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी शेप भी काफ़ी वेरी करती है। समटाइम्स ये ऐसे नीचे से 2 में डिवाइड होता है, तो इसको हम बाइफेट कहते हैं। समटाइम्स इट इज लाइक दिस बट परफोरेटेड इन द मिडल, तो इसको हम परफोरेटेड कहते हैं। सो there are some anatomical differences which you have to remember. Now attachments क्या है, इस पर भी कुछ muscles attach होते हैं। For example the anterior surface, ये तो खैर posterior surface हम देख रहे हैं, posterior surface पे diaphragm attach होता है। So there is a diaphragm attachment, ठीक है। So this is an important point. This Zephoid process provides attachment to the diaphragm. Anterior surface पे however क्या attach होता है, rectus abdominis, external and internal oblique. So abdomen के muscles basically attach हो रहे हैं anterior surface पे. So if you look at this particular diagram, that is the Zephoid process, और Zephoid process sometimes foramen के साथ होता है। So this is perforated Zephoid process, और ये देखें muscles हैं attached rectus abdominis. So abdomen के muscles anterior surface पे attach होते हैं of the Zephoid process, okay? Now the upper end forms the primary cartilaginous joint with the body of the sternum, and the lower end is attachment to the linea alba, which is a modified deep facial. ये हम पढ़ेंगे जब muscles पढ़ेंगे, rectus abdominis, linea alba. Abdomen में ये पढ़ेंगे what is linea alba, but remember ऊपर ये attach हो रहा है body of sternum के साथ और नीचे ये attach हो रहा है linea alba से, which is a facial thickening. So basically, if we summarize the whole story, this big bone which is present anteriorly in the midline is called sternum. इसके 3 parts हैं. The first part is manubrium, the second part is body of the sternum, and the third part is Zephoid process या Zephy sternum. हर part के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से borders हैं, कौन से surfaces हैं, नीचे किसके साथ attach हो रहा है, ऊपर किसके साथ attach हो रहा है, side से किसके साथ attach हो रहा है. All this you should know about sternum. ठीक है. अब ossification के हवाले से development and ossification, sternum develops by fusion of 2 sternal plates, one on either side of the midline, so right sternal plate and left sternal plate. और इनकी अगर फ्यूजन में प्रॉब्लम हो जाए, यानी ये बाद में अगर फ्यूज ना हो, समटाइम्स ऐसे होता है कि डेवलपमेंटल एनॉमली होती है और स्टर्नम सही से डेवलप नहीं होती और हार्ट जो है वो विदाउट स्टर्नल कवरिंग, स्टर्नम नहीं होती तो हार्ट पॉप्स अप, हार्ट ऊपर ऊपर नजर आता है और उसके ऊपर कोई स्टर्नम नहीं होती. ओके, नाउ जो मेनिब्रियम है यानी जो अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम है, इट ossifies from 2 centers appearing in 5 months. So if you look at this diagram, this is the sternum,
ये पूरी की पूरी बोन स्टर्नम है, और इस स्टर्नम का ये वाला जो पार्ट है, दिस इज पार्ट नंबर 1, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैनिब्रियम। इसमें कितने सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन अपीयर होते हैं? 2 सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है। और ये किस टाइम पर अपीयर होते हैं दोनों सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन? अराउंड 5 मंथ, ओके। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड स्टर्निब्री ऑसिफाई फ्रॉम वन सेंटर अपीयरिंग इन 5th मंथ। अब ये स्टर्निब्री क्या है? स्टर्निब्री ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो स्टर्नम के ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फॉर्म होते हैं, और ये डिफरेंट पार्ट्स फिर बाद में सब मिल जाते हैं आपस में, दे फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। बट इनिशियली इनके जो सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन है वो यहाँ दिखाए हुए हैं कि हाउ दे आर अपीयरिंग इन द 5th मंथ, और जो लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम है दे अपीयर बिटवीन 5 to 6 मंथ्स, और जो ज़िफॉइड प्रोसेस का सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है इट एक्चुअली अपीयर्स इन द 3rd ईयर ऑफ द लाइफ, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप इसको देखें कि ये कब फ्यूज हो रहे हैं, लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, यानी जो लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम है दे फ्यूज प्रीटी लेट इन लाइफ, अराउंड 25 ईयर्स ऑफ एज पे जाकर के दे फ्यूज, ओके। नाउ द मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट is a secondary cartilaginous joint and usually persists throughout. It never ossifies. It always persists throughout the life as a secondary cartilaginous joint. And this is an important point क्योंकि ये जो manibrosternal joint है, this manibrosternal joint, this joint here, अगर ये ossify हो जाएगा, if it ossifies, तो इसकी movement खत्म हो जाएगी. And we want this movement to happen all the time throughout the life. क्योंकि इस movement की वजह से जो पूरा rib cage है यहाँ पर वो move करता है, expand करता है, और रेस्पायरेशन के लिए ये मूवमेंट जरूरी है। सो ये स्टोरी ऐसे है कि पूरे रिब केज की मूवमेंट अलाउ होने के लिए इस जॉइंट का मोबाइल होना जरूरी है। अगर ये जॉइंट फिक्स हो गया तो रिब केज की मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज होगी, ओके। सो नेचर ने ऐसा रखा है सिस्टम कि ये जो मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट है विच इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेकेंडरी टाइप, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। नाउ द सेंटर फॉर ज़िफॉइड प्रोसेस अपीयर्स ड्यूरिंग द 3rd ईयर, ये बात मैंने आपको बताई, और ये ऑसिफाई होता है अराउंड 40 ईयर्स ऑफ एज में। यानी ये जो ज़िफॉइड प्रोसेस है काफी लेट 3rd ईयर में अपीयर होता है और 40 years में फ्यूज होता है। So that's an important diagram showing you centers of ossification, their time of appearance and their time of fusion. Okay, right. Okay. अब कुछ clinical correlate हैं। Sternum use होती है for bone marrow aspiration. This is very important, और ये usually किया जाता है manibrosternal puncture से या manibral का puncture से, which is usually done in the upper half, क्योंकि लोअर हाफ में देयर इज एन आर्च ऑफ एओर्टा, उसकी इंजरी का चांस है। मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी ये वाली, और यहाँ हमने ये बात की थी कि मैनिब्रियम के पोस्टीरियर सरफेस में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है आर्च ऑफ एओर्टा। तो सोचें अगर now go back to this diagram, अगर मैं यहाँ पे नीडल इंसर्ट करता हूँ बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए और मैं पंक्चर कर देता हूँ पूरी की पूरी मैनिब्रियम को, एंड आई गो ऑल द वे बैक टू द एओर्टा, सो देयर आर चांसेस कि इसके पीछे यहाँ पर एओर्टा का आर्च होगा एंड आई कैन पियर्स द आर्च ऑफ एओर्टा, व्हिच आई ऑब्वियसली डोंट वांट। तो इसको बचाने के लिए, इस इंजरी को बचाने के लिए अपर हाफ से बोन मैरो एस्पिरेट किया जाता है, ठीक है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर कि इट इज यूजुअली डन इन द अपर हाफ टू प्रिवेंट द इंजरी टू द आर्च ऑफ एओर्टा। Now, the slight movement that takes place at the manibrosternal joint is essential for movement of the ribs. ये बात मैंने आपको समझा दी है कि अगर ये वाला जॉइंट इस तरह से मोबाइल नहीं होगा मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट, तो रिब्स की मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज होगी और पूरी की पूरी रेस्पायरेशन कॉम्प्रोमाइज होगी। अब 2-3 टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर वी एंड द लेक्चर। फनल चेस्ट और दूसरा है पिजन टेस्ट, पिजन चेस्ट, ओके। फनल चेस्ट में ये होता है कि जो स्टर्नम है देयर इज अ डिप इन द स्टर्नम, तो सामने से अगर बंदे को देखें तो देयर इज अ डिप लाइक दिस, ओके। और जो पिजन चेस्ट है उसमें देयर इज अ बीक अपीयरेंस, ऐसे बाहर निकला हुआ होता है एक्सटर्नल एरिया। तो ये 2 टर्म्स आपको पता होने चाहिए। फिर एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो ओपन कार्डियक सर्जरी होती है उसमें पूरा मैनिब्रियम को और बॉडी ऑफ स्टर्नम को काटा जाता है, स्प्लिट किया जाता है ताकि एक्सेस हो सके हार्ट तक, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट यहाँ पे, ओके। नॉन फ्यूजन ऑफ स्टर्नल प्लेट्स कॉजेज एक्टोपिया कॉर्डिस, ये बात मैंने आपसे की कि जो स्टर्नम है वो राइट और लेफ्ट हाफ से मिलके बनती है, प्लेट से मिलके बनती है। अगर इनकी फ्यूजन नॉर्मल ना हो तो हार्ट एक्सपोज्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिया कॉर्डिस। सो दिस condition is rare but can happen. Now, partial fusion of the plates may lead to the formation of sternal foramina, Zephoid Zephoid process. Sometimes ये जो plates हैं, so imagine it like this कि ये midline है और ये right sternal plate का part है, ये left sternal plate का part है। Usually ये दोनों fuse करते हैं। अगर ये fuse नहीं करेंगे completely तो ectopia cordis। अगर ये incompletely partially fuse करते हैं तो कहीं हो सकता है foramen बच जाए, हो सकता है Zephoid process में foramen बच जाए, हो सकता है Zephoid process इस तरह से bifid हो, उसके 2
दो पार्ट्स निकले हुए हो. सो ऑल दीज कैन हैपन ड्यू टू नॉन फ्यूजन या इनअप्रोप्रिएट फ्यूजन ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट स्टर्नल प्लेट्स. सो दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट स्टर्नम. इसके 3 पार्ट्स याद रखने, मेनिब्रियम, बॉडी एंड ज़ेफॉइड प्रोसेस. हर पार्ट के बॉर्डर्स, सरफेसेस, अटैचमेंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थोरैसिक वर्टिब्री.